Yama, please keep your mic off, and other participants also, please keep your mic off. Thank you so much. अच्छा जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. First thing first, introduction to speaker. Then we shall discuss introduction to IELTS. I mean, a brief introduction to IELTS. Then band requirement, planning, expectation versus reality, timetable, and so many other things we shall discuss in this session. Basically, this is the first class of the new session. January 2022 session will start from Monday, and today is the first orientation class. Okay, let's start formally now. My name is Muhammad Ayaz Aslam. As for my qualification is concerned, my MA English, Linguistics and Literature. जी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं रोज अपना माइक ऑफ कर लें. ठीक है जी. My name is Muhammad Yaz Aslam. As for my qualification is concerned, first I'm English, Linguistics and Literature. Then I did MPhil, teaching English as second language. And one thing is important in MPhil that my majors were language testing and evaluation. I've been teaching to IELTS since, okay, another thing. So my research paper was, the dissertation was IELTS, it was on IELTS academic reading module. So I've been teaching to IELTS since last 10 years. This is a brief introduction of mine. Now let's move on towards rest of the things. अच्छा जी, introduction to IELTS. IELTS किसको कहते हैं जी? IELTS basically एक instrument है. अच्छा, it was ELTS, English Language Testing Services. ठीक है ना, before 1996. Before 1996, it was ELTS, and after 1996, it became IELTS, which is International English Language Testing Services. IELTS क्या है बेसिकली? ये एक इंस्ट्रूमेंट है. IELTS बेसिकली एक टेस्ट है, एक स्केल है. दिस इज अ स्केल which measures your ability in 4 different areas. रीडिंग आपकी देखते हैं कि जी कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं. Then where you stand in listening, speaking, and writing. So we have 2 different variants of IELTS. One is IELTS academic. This is for those students who are seeking advanced education.
from an English speaking country, right? Or where English language is a vehicle of classroom language, right? So there are two conditions. If you want to do IELTS academic किन लोगों के लिए? If you are seeking further education, advanced education from any English speaking country जहाँ पे English language में पढ़ाया जाता है, ऐसे ममालिक में या फिर दूसरे जैसे जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन उनकी यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे भी दे आस्क यू दैट यू हैव टू शो योर एबिलिटी, you have to prove your language proficiency in by doing some assessment. तो ये एक स्केल है बेसिकली. स्केल क्या करता है? ये मेजर करता है. मिसाल के तौर पे वेट मशीन है, वो मेजर करती है आपकी एबिलिटी कि आपका वेट कितना है. इसी तरीके से आपकी जो बेसिकली आयल्स है, ये एक हाई स्टेक टेस्टिंग सिस्टम है जो कि मेजर करता है कि वेयर यू स्टैंड इन रीडिंग, वेयर यू स्टैंड इन राइटिंग. अच्छा, अब ये क्यों डिजाइन किया गया? उन्होंने कहा जी आप बाहर जाएंगे, जाके वहां पे आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट थीसिस वगैरह को पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा, बुक्स को पढ़ना पड़ेगा. उसके अलावा बहुत ज़्यादा एकेडमिक रिसोर्सेस को रीड करना पड़ेगा कि क्या आप इस काबिल हैं कि द मोमेंट यू विल गो देयर देन you can easily accomplish those assignments which are in English language. If they will say that you have to read some articles and some books and then come back after 5 days or 10 days, is this possible कि जी आप वापस आए और आके उसके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन दे सकें, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग आप कर सकें? अगर ये मुमकिन, इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने आपका रीडिंग का टेस्ट लिया और उसके 9 बैंड हैं. 9 आप इसको इस तरह समझें जैसे 90 में से आपको स्कोर दे रहे हैं, ठीक है ना? जैसे हमारे 100 मार्क्स होते हैं, इसी तरीके से कुछ बैंड्स हैं जिसमें से आपको स्कोर मिलेंगे. सेम इज द केस विद राइटिंग. राइटिंग में भी जी आपके 9 बैंड हैं. अगेन इसके अंदर कुछ चीजें असेस की जा रही होती हैं. अभी हम डिटेल में आते हैं कि क्या क्या चीज असेस की जा रही है और आपने कैसे करना है. बट 9 बैंड. लिसनिंग के बाद इसके भी 9 बैंड होते हैं ओवरऑल एंड यू हैव टू स्कोर. व्हाट यू स्कोर वी शैल डिस्कस. तो 9 ईच है जी. रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और इसी तरीके से स्पीकिंग में भी 9 बैंड होते हैं. Now, what is the requirement of the student? Band requirement क्या है? This is the question. अच्छा जी, अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप आगे जा रहे हैं प्लैब के लिए, आई थिंक दिस इज प्लैब, इस तरह होता है. कोर्स है बेसिकली डॉक्टर्स के लिए और वो यूके के अंदर होता है और वहां पे दे नीड 7.5 ओवरऑल and 7 in each module. They have two different options. या तो वो IELTS का पेपर दे लें और आजकल एक और है, या फिर वो OET का ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट ये दे लें और उसमें दे हैव टू स्कोर 7.5 ओवरऑल 7 ईच. अगर आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या आपको किसी भी हाई रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, they straight away say that we need 7 in each module. रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब में आपके 7 बैंड आने चाहिए, किसी में से कम नहीं आने चाहिए. ठीक है जी. अच्छा जी, उसके बाद अगर आप बेसिकली जनरली स्पीकिंग व्हेन in most cases, for example, you want to get admission in MBA or you want to get admission in management sciences, then what you need to do, 6.5 overall and 6 in each.
अगर आप ये स्कोर कर लेते हैं कि 6 से कम स्कोर ना हो आपका और 6.5 ओवरऑल हो, तो 90% यूनिवर्सिटीज जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं उनके अलावा आपको एडमिशन दे देती है। ठीक है, तो ये भी एकेडमिक के अंदर दिस इज द रिक्वायरमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो बेहतर तो ये है कि 6 बैंड ओवरऑल एंड नॉट लेस देन not less than 5.5, right? Sorry, 6 band overall and 6 each. Okay, what is the difference between each and overall? ओवरऑल का मतलब ये है कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सबके स्कोर्स को ऐड करके ओवरऑल स्कोर बनता है, उसको 4 पे डिवाइड करते हैं, देन यू विल गेट योर ओवरऑल स्कोर। और जब हम ईच की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि अलग अलग से सेपरेट रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में आपके बैंड कितने आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है या इंटरमीडिएट है और आप भी आगे डिप्लोमा कोर्स वगैरह करना चाह रहे हैं, तो काफी यूनिवर्सिटीज आपको 5.5 पे भी एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है। अच्छा, आजकल हो ये रहा है कि स्वीडन के लिए और जर्मनी के लिए आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन वीजे उन लोगों के लिए लग रहे हैं कि जिन्होंने आइल्स किया होता है। यानी वो कहते नहीं है बट आइल्स प्रेफरेंसेस वहां पे भी है। अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो ये एक कॉमन अजम्पशन है कि आपकी प्रेफरेंसेस आर, आइल्स की प्रेफरेंसेस स्वीडन और जर्मनी के केस में भी होती है। अगर आप यूके में जाना चाह रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं जी आइल्स एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी जैसे कनाडा के अंदर वो कह रहे थे कि अगर आप पढ़ने आना चाहते हैं तो एक टेस्ट है ड्यूलिंगो, इस तरह का उसका नाम है ड्यूलिंगो करके, ये ये टेस्ट दे दें और अगर आपके इसमें जो रिक्वायर्ड बैंड्स आ जाते हैं तो देन यू कैन इजीली गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। अच्छा, एडमिशन आपको मिल जाता है, एडमिशन का मसला कोई नहीं है, लेकिन जब आपका वीजा लगता है तो फिर देखा जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डोलिंगो किया होता है उनको वीजा नहीं देते, और जिन्होंने आइल्स किया हुआ होता है तो उसको वीजा दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आइल्स जो सा है इसकी क्रेडिबिलिटी ये हाई क्रेडिबिलिटी है, और ये समझा जाता है कि जिन स्टूडेंट्स ने आइल्स किया हुआ है वो बाकी लोगों से बेहतर है और उनको एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छा जी, ये आइल्स की क्रेडिबिलिटी की बात होगी ड्यूलिंगो की बात होगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि कनाडा के अंदर भी आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी, बट प्रॉब्लम ये आएगी कि वहां पे भी आपको वीजा जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो उन लोगों का वीजा लग रहा होगा कि जिन्होंने आइल्स किया होगा, बाकी वीजे रिजेक्ट हो रहे होंगे। सो इट हैपन्स, तो ऐसा होता है। अच्छा जी, इसके अलावा ये जी आपके बेसिकली मोस्ट इन मोस्ट केसेस यू नीड 6.5 ओवरऑल एंड 6 ईच, ये आपका सबसे ज्यादा है। अगर आपके 6.5 ईच आ जाते हैं तब भी ठीक है। डॉक्टर्स वगैरह को 7 इन ईच मॉड्यूल लाजमी चाहिए होता है, ओवरऑल 7.5 चाहिए होता है। ठीक है जी। So this is the requirement of IELTS academic. Now let's talk about GT IELTS. GT IELTS कौन लोग देते हैं? वर्क वीजा के लिए, एंड सेकंड परमानेंट रेजिडेंसी, या आप इसको चले सिंपल अल्फाज में कहें इमिग्रेशन के लिए। जब आप सिटीजनशिप हासिल करना चाह रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी रेजिडेंस देख रहे हैं, जब आप इमिग्रेशन हासिल करना चाह रहे हैं, देन यू नीड टू डू GT IELTS। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? यहाँ पे जी सबसे पहले आती है कैनेडियन के लिए, कनाडा, कनाडा के लिए CLP 10,
CLB 9। अच्छा, आजकल ये भी हो रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे देती हैं। वो कहती हैं आप हमारा अपना टेस्ट दें, उसके बाद हम आपको एडमिशन दे देंगे। एडमिशन हो गया, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, अब वही कहते हैं जी ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें जब तक वीजे नहीं खुलते। अच्छा चले, जब वीजे खुलते हैं तो बाज का एम्बेसी वीजा नहीं देती और एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है। यूनिवर्सिटी को तो पैसे चाहिए, उन्होंने आपको एडमिशन दे दिया, आपने वहां पे पेमेंट कर दी, एनरोलमेंट करवा ली, उसके बाद अब यूनिवर्सिटी जो सी है आपको ये कह रही है कि आप इसे कंटिन्यू करें जब तक वीज़ाज वगैरह नहीं ओपन होते। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त पता ये लगता है कि एम्बेसी आपको विदाउट टेलिंग यू द रीजन दे रिफ्यूज स्ट्रेट अवे, जितनी भी एम्बेसीज हैं। तो उसके लिए जो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक ओपिनियन ये है कि जी आपको आइल्स में स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं एकेडमिक की बात कर रहा था। अच्छा जी चले, अब हम आते हैं कनेडियन इमिग्रेशन के लिए। CLB 10 ये क्या चीज़ है? 8.5, 8.5, 7.5, 7.5। अच्छा जी, लिसनिंग में 8.5, रीडिंग में 8.5, स्पीकिंग में 7.5, राइटिंग में 7.5। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको CLB 10 कहलाता है, काफ़ी ज़्यादा स्कोर्स मिलते हैं और फिर आपका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो आसान हो जाता है, आपके स्कोर ज़्यादा हो जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। CLB 9 यहाँ पे मोस्ट वांटेड बैंड स्कोर, फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको CLB 9 चाहिए होता है। अगर आप फेडरल के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोविंशियल के लिए डिफरेंट केस है, लेकिन फेडरल के लिए आपको 8,777 रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना, 8 इन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में आपको 777 रिक्वायर्ड होता है। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के बाद बाकी भी जगहों पे बात कर, यू नीड 8 ईच। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन sometimes you need 7.5 in each module। तो कुछ केसेस ऐसे हैं उसमें वो कहते हैं कि जी आपके अगर 6.5 और 6 बैंड भी आ जाते हैं तो वही एक्सेप्ट हुई। ये कौन से होते हैं? यहाँ पे बेसिकली वर्क परमिट मिला होता है या समटाइम्स बिजनेस क्लास वीजा होता है। बिजनेस क्लास वालों को भी आइल्स जरूर करना पड़ता है, कम से कम बैंड्स लेने पड़ते हैं। सो दीज आर द बैंड रिक्वायरमेंट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हम आइल्स की बात करते हैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी बाकी सारी टेस्टों के ऊपर है। यानी कि ये टॉफल को बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आइल्स को यूएसए में भी, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में, ठीक है ना, पाकिस्तान में अगर आप लम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका ताल्लुक है सोमालिया के साथ, अफ्रीका के साथ, सऊदी अरब के साथ, तो फिर आपको आइल्स देना पड़ेगा। इसी तरह काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं जो कि आइल्स मांगती हैं कि यू हैव टू, इवन आप अगर पाकिस्तान में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आप पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं हैं, यानी फॉरेनर हैं कोई, दूसरे केसेस में ऐसा होता है कि आपको बेसिकली दूसरे मतलब इंग्लिश कंट्रीज के लिए ये बैंड्स रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। सबसे कम होती है जी बिजनेस क्लास के अंदर जो 5.5 और 6 होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो ये वाली होती है 8,777। अब इसमें जो सबसे ज्यादा फेलियर होता है वो होता है राइटिंग। जो स्टेटिस्टिकल डेटा है वो ये बताता है कि 9 फेलियर्स, 9 out of 10 जो फेलियर्स होते हैं वो होते हैं राइटिंग मॉड्यूल।
आपके 8 आ जाएंगे, किसी में 7.5 आ जाएंगे, राइटिंग में यू विल गेट 6.5। अब इसको कैसे डिकोड किया जाए, इसको किस तरीके से आप इस इशू को रिजॉल्व करें, इसकी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब तक जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, मैंने बता दूं 3 डिफरेंट चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक तो इंट्रोडक्शन था, मैंने क्या मेरी क्वालिफिकेशन है और टीचिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद आईएलटीएस टेस्टिंग बॉडी क्या है, ये क्या काम करती है। इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टेस्ट डिजाइन करती है, आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। इट हैपेंस इन दिस वे। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी 9 बैंड ओवरऑल रिक्वायरमेंट होती है, और हमें किस तरह, मतलब कितने कितने बैंड्स चाहिए अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैंड रिक्वायरमेंट क्या होगी। ये मैंने सारी चीजें अब तक डिस्कस की हैं यहाँ पे। अब हम आगे बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है और एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी क्या चीज है। अच्छा जी, if your target is 8777 band, this is not your target, this is your requirement। अच्छा, जब आपकी रिक्वायरमेंट 8777 बैंड की है तो यू नीड टू स्कोर 8.5/9.0 in listening, 8 in reading, 8 in speaking, 8 in writing। ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब आपकी तैयारी इस तरह की होगी, देन यू विल बी एबल टू स्कोर 8777। क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे वॉश बैक इफेक्ट है, और भी काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आपके स्कोर्स उनसे लूज होते हैं। एग्जाम का प्रेशर होता है बेसिकली, और सोशल प्रेशर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं। उसके अलावा टॉपिक बाज का तो रेलिवेंट नहीं आता। बाज का ये होता है कि मतलब काफी ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपने परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट होना चाहिए वो दैट इज 8 इन ऑल दीज मॉड्यूल्स। तो जब हम इसकी बात करते हैं, चलिए जी हम बारी बारी बात करते हैं। सबसे आसान मॉड्यूल है लिसनिंग। अगर हम चैलेंज की बात करेंगे, मोस्ट चैलेंजिंग जो सा है, मतलब नीचे से ऊपर से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग राइटिंग होता है। तो सबसे ज्यादा अगर कम चैलेंजिंग है दैट इज लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद रीडिंग, रीडिंग के बाद राइटिंग, और राइटिंग जो सा ना ये मोस्ट चैलेंजिंग मॉड्यूल है आइल्स का। जी, रीडिंग रीडिंग लिसनिंग की बात करते हैं। लिसनिंग जो सा जी इजीएस्ट वन है। इसमें एक चीज आपने करनी जी, एमसीक्यूज। कुछ चीजें बहुत जल्दी से इंप्रूव कर जाएंगे अगर आपके स्पेलिंग ठीक है, आपकी थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल अच्छी है, आप रेगुलर लिसनर हैं। नहीं भी रेगुलर लिसनर तब भी इंप्रूव हो जाता है। और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कम टाइम में जो चीज, जो आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंप्रूव होती है वो लिसनिंग के अंदर होती है। ठीक है, इसके लिए यू कैन टारगेट सबसे पहले 8.5 मैनी स्टूडेंट्स दे स्कोर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं बताता चलूँ कि आइट्स में 9 आउट ऑफ 9 भी स्टूडेंट स्कोर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, काफी मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर 9 आउट ऑफ 9 भी स्कोर हो जाते हैं। कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी देखें जी, ये एकेडमिक हाइट है 7.7, ये रीडिंग में 9 है, लिसनिंग में 8.5 है, लिसनिंग में 8 है। ठीक है, इनके एकेडमिक आइल्स है 8, रीडिंग में 7.5, इनकी रिक्वायरमेंट 6.5 ईच है, 7 ईच थी। ये देखें जी 9 और 8 में भी आपको, लिसनिंग में भी, रीडिंग में 9 आ रहे हैं जी, ये रीडिंग में 9 है, लिसनिंग में 8 है, रीडिंग में 8 है, एकेडमिक आइल्स है,
ये लिसनिंग में 9 है, तो रीडिंग में 9 आपने पहले देख ली है, ये लिसनिंग में 9 यहाँ पे भी देख लें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है एक भी स्टूडेंट जो सा अगर वो 9 स्कोर कर लेता है तो इसका मतलब है कोई दूसरा बंदा भी कर सकता है। ये अनहोनी में से नहीं है, ये सारी पॉसिबिलिटीज के अंदर चीजें जो सी मौजूद है। तो ये लिसनिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक ना हो, ये ना हो कि आपसे वर्ड्स नहीं लिखे जा रहे, ये ना हो कि स्पेलिंग बहुत पुअर है, ये ना हो कि आपको रीड करके आंसर्स उतारने ना आते हो, बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं है। तो फिर आप दरमियाने दर्जे के भी स्टूडेंट हैं, एवरेज भी हैं, इवन देन यू कैन स्कोर 8, 8.5 और 9 इन लिसनिंग, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड आती है जी स्पीकिंग। स्पीकिंग एक इंटरव्यू होता है जिसमें 7 to 15 मिनट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। दूसरे में क्यू कार्ड होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, 4 to 5 टेस्ट आइटम्स। बेसिक लेवल के होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि लोग आपके आपका कौन, आप किस कलर को पसंद करते हैं, आप अपनी बर्थडेज मनाते हैं, आप टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन। और इसमें अपने वाय बताना होता है। पीपल दे कैन यूजुअली रिस्पॉन्ड टू ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आराम से जवाब दे देते हैं। अनटिल कि वो बहुत वीक हैं, उनका लेवल को 3 बैंड का है या 4 बैंड का है, लेकिन ये कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद इस चीज़ को कर लेती है। क्यू कार्ड पे आके प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आपने मुसलसल 2 मिनट बोलना है और एग्जामिनर खामोश हो जाता है। तो यहाँ पे 2 मिनट्स मोनोलॉग, मोनोलॉग कहते हैं वैसे तो खुद कलामी को, खुद से बात करना। लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई एग्जामिनर इंटरवीन नहीं करता, आपको कोई बकअप नहीं करता, आपको कोई एग्जाम्पल नहीं बताता, एक दफा क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाता है, उस पर आपने कुछ नोट्स बनाने होते हैं, देन यू विल कीप ऑन स्पीकिंग ऑन दिस, सो इट हैपेंस। तो क्यू कार्ड जो हैं वो 2 मिनट्स के होते हैं, उसके बाद डिस्कशन क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं बेसिकली जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, दैट इज योर प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, स्ट्रक्चर, ग्रामर, लेक्सिकल रिसोर्सेज। प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट नहीं है। प्रोनाउंसिएशन में या तो आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करेंगे या अमेरिकन को, मिक्स नहीं करेंगे। मतलब या तो कंप्लीट आपकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है या कंप्लीट आपकी अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। फ्लुएंसी के साथ कोहेरेंस भी होती है, आ की आवाज़ें, अननेसेसरी पॉजेज और इस किस्म की चीज़ें आपकी लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए, और आप रेलेवेंट भी हो। अगर आप बोलते चले जा रहे हैं बट यू आर नॉट रेलेवेंट, तो आपको फ्लुएंसी के अंदर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ग्रामर के अंदर डाइवर्सिटी पैदा करनी है, आपने मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं ताकि यू विल you need to convince the examiner that you deserve this band. You have a command on grammar, so in this way you will get your maximum band score in grammar section. And after this, lexical resources, lexical resources का simple नाम vocabulary है। वोकेबलरी में आपने इडियोमैटिकल लैंग्वेज यूज करनी है। The native English speakers हैं, they use idiomatical expressions. For example, they say hang out का word use करेंगे, और भी काफी। हम लोग जो पढ़ते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो वो बोलते या लिखते हैं वो डिफरेंट होते हैं। For example, they will say that I work 24/7. ये कॉमन चीज़ है, वहाँ पे लोग बात करते हैं, जी I work 24/7।
मैं हर वक्त काम करता हूँ, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड टोन है लेकिन उनके लिए एक सिंपल चीज़ है। इसी तरीके से गेट ऑन का वर्ड, नेल डाउन का वर्ड, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनकी लैंग्वेज में कॉमन है। अगर आप वो नहीं बोलेंगे, सीधा पाकिस्तानी टिपिकल जो इंग्लिश है उसको बोलेंगे, तो दे विल नॉट गिव यू मार्क्स इन स्ट्रक्चर, इन लेक्सिकल रिसोर्सेज। जो आइल्स की राइटिंग की वोकैबुलरी है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जो स्पीकिंग की वोकैबुलरी है उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लेकिन फिर भी लिसनिंग के बाद स्पीकिंग में विद सम स्ट्रगल, विद सम आई मीन हेल्प और असिस्टेंट ऑफ समबडी, यू कैन स्कोर योर डिजायर बैंड्स। प्रॉब्लम ये आती है कि कई कई महीने से लोग लगे हुए हैं लेकिन 0.5 भी इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो वो काम किसके साथ होता है? या तो रीडिंग के साथ होता है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली राइटिंग के साथ होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग मॉड्यूल। एकेडमिक रीडिंग डिफरेंट, जीटी रीडिंग डिफरेंट होती है। व्हाट्स द डिफरेंस? इसमें भी 3 सेक्शंस, 3 पैसेजेस, 40 टेस्ट आइटम्स। टेस्ट आइटम लैंग्वेज टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन के अंदर क्वेश्चंस को कहा जाता है। सो व्हाट दे विल असेस इन दिस, वो क्या करेंगे जी? वो सबसे पहले ग्रामर के अंदर, अच्छा जी, यहाँ पे भी बेसिकली वो पब्लिकली तो इसको नहीं बताते, लेकिन उनके रिसर्च पेपर्स में अगर आप पढ़ें, बाकी चीज़ों को एडवांस लेवल पर देखें कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ आइल्स एकेडमिक रीडिंग, देन यू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि रीडिंग मॉड्यूल के अंदर आपका बैकग्राउंड नॉलेज कैसा है। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि क्या आपको लाइफ साइंसेस का आइडिया है, क्या आपको फिजिकल साइंसेस का आइडिया है, आपको सोशल साइंसेस के बारे में पता है कुछ, या आपको कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लेंगे अगर आपको दिए जाएं। तो इन 3 एरियाज में से आपके 3 पैसेजेस बनते हैं, लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। तो बैकग्राउंड नॉलेज दे असेस, ठीक है ना। आप अगर आपका फेमिलियर टॉपिक नहीं है तो स्कोर लूज कर जाएंगे। सेकंड थिंग इज आपकी एनालिटिकल स्किल, योर कमांड। अच्छा जी, वोकैबुलरी को भी चेक कर लेते हैं। कुछ सिनोनिम्स ऐसे दे देंगे, कुछ कॉन्टेक्सचुअल वर्ड ऐसे दे देंगे कि जहां से पता लगेगा कि जी आपकी वोकैबुलरी पे कितनी कमांड है। अनकॉमन मीनिंग, अनकॉमन मीनिंग कैसे है? लेट्स सपोज एक वर्ड है जी अंडर ब्रश। इसका मतलब ये है कि बेसिकली दिस इज समथिंग व्हिच इज अंडर ब्रश। आप समझ लें कि जैसे कोई चीज साफ करना, ब्रश के नीचे कोई चीज, लेकिन इसका मतलब होता है झाड़ियां ऐसी जो कि दरख्तों के नीचे उगी हुई हों, जिन्हें आग जल्दी लग जाती है, वो अंडर ब्रश है। इस तरह काफी ज्यादा ऐसे वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं कि जिसका आपको गुमान भी नहीं होता कि ये भी इसका मीनिंग है। तो वोकैबुलरी को भी ये लोग असेस कर रहे होते हैं कि वोकैबुलरी में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा जी, वोकैबुलरी के बाद देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इसी वोकैबुलरी के अंदर, आपके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के जरिए कुछ क्वेश्चन में सिनोनिम्स दे देते हैं और बताते हैं कि जी आप पढ़ेंगे कुछ और लाइन में, हकीकत में जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी तो वहां पे सिनोनिम्स डिफरेंट दिए जाएंगे। और इसको चेक करने के लिए सम टाइम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन का भी यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट देयर आर 40 टेस्ट आइटम्स, 40 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम होता है 60 मिनट्स। 3 पैसेजेस, पैसेजेस के अंदर वर्ड्स जो होते हैं वो 2000 टू 2500 होते हैं। डिफरेंट पैसेजेस के अंदर डिफरेंट
जीटी रीडिंग में भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसके भी 3 सेक्शन, लेकिन हर सेक्शन में पैसेजेस ज्यादा आपको नजर आ रहे होते हैं। इसके अंदर इफ यू विल स्कोर 7 बैंड 30 करेक्ट आंसर्स, 30 करेक्ट आंसर्स मीन 7 बैंड। इसमें ये थोड़ा सा आसान होता है, बट 34 करेक्ट आंसर्स मीन 7 बैंड। अगर आपके 33 आ जाते हैं देन यू गेट 6.5। 6.5 आ गया तो फिर आपका CLB 9 नहीं चलेगा। रीडिंग में यू नीड टू स्कोर 7, राइट, एटलीस्ट 34 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन के बस आप आंसर गलत कर सकते हैं, बाकी आपको सब ठीक करने हैं। अगर करेंगे तो आपके रीडिंग में स्कोर आएंगे, तो अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ये जीटी रीडिंग के अंदर आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं most challenging module. I've been teaching to IELTS students. I told you that since last 10 years, I taught to doctors, I taught to engineers, bankers, lawyers, और judges. जी कुछ आप कहना चाह रही हैं? जी वनीजा, you want to say something? Thank you. Please keep your mic off if you want to ask anything. कुछ emergency है तो पूछ लें, otherwise write down your questions. अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, इसके बाद तो जो दिल करेगा आप पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर दे सकूं उसका। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं और वो अपने अपने एरियाज में बड़े साउंड है। मिसाल के तौर पे एडिशनल MS मियो हॉस्पिटल किसी जमाने में, अब मैं नहीं बताता कौन थे वो, क्या था। इंजीनियर्स भी डेस्कॉन इंजीनियरिंग से, पाकिस्तान से बाहर से बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स, बैंकर्स, लॉयर्स, लेकिन जब आइल्स आता है तो फिर वहाँ पे स्कोर लूज कर जाते हैं। तो इसमें अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज आइल्स और स्कोर उसकी रिक्वायरमेंट हो बेसिकली 8777, या उसकी रिक्वायरमेंट हो इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन, अगर मुझसे कोई पूछे आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास पैसा है, आप हर चीज कर सकते हैं, कोई कहे कि जी आप बाहर जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन क्या है, मैं कहूँगा जी इमिग्रेशन नाम है आइल्स का। वो कहेगा जी आइल्स क्या है, कहेगा जी आइल्स नाम है राइटिंग का। वो कहेगा जी अच्छा राइटिंग क्या है, मैं कहूँगा जी वोकैबुलरी नाम है राइटिंग का। जी वोकैबुलरी क्या चीज है, वन वर्ड में बताएं। मैं कहूँगा जी कॉलोकेशन। जी कॉलोकेशन क्या चीज है, मैं कहूँगा आइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। मैं कहूँगा जी कॉन्टेक्सचुअल यूज ऑफ अनकॉमन वर्ड्स। ये कॉलोकेशन, बाकी हर चीज एड्रेस की जा सकती है। ग्रामर बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती है, पंक्चुएशन इंप्रूव हो जाती हैं, और बड़ी ज्यादा चीजें आपकी इंप्रूव हो जाती हैं। तो आइल्स के अंदर राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो मेजर फेलियर्स यही होते हैं। बात करते कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी हम स्पीकिंग करना चाहते हैं, ठीक है जी आप कर लें स्पीकिंग, लेकिन आप लिसनिंग करना चाह रहे हैं, जी लिसनिंग करना चाह रहे हैं, मेरे कुछ लेक्चर्स हैं वो ले लें, फ्री हैं बिल्कुल, आप जाके लिसनिंग कर लें, आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। आप 6 to 7 लेक्चर्स हैं, अगर आप कर लेंगे तो 99% चांसेस हैं कि यू विल गेट 8 बैंड। ठीक है, खुद से तैयारी कर लें। अच्छा जी, रीडिंग की जरूरत पड़ेगी, जी हाँ रीडिंग आपको पढ़ानी पड़ेगी। रीडिंग इतनी सीधी नहीं है कि जैसे हम लोग समझते हैं, बेसिक लेवल की प्रैक्टिस कर लेंगे लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर नहीं होंगे।
तो रीडिंग को क्लियर करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा दूसरी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, इनक्लोजिंग डिटेल्स हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्लॉजेज हैं, ट्रांजिशंस हैं, सपोर्टिव सेंटेंसेस हैं, बैकग्राउंड स्टेटमेंट्स हैं, थीसिस स्टेटमेंट्स हैं, बॉडी पैराग्राफ्स की अलाइनमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि रीडिंग में आपको समझनी पड़ेंगी। और रीडिंग और राइटिंग इंटीग्रेटेड है, रीडिंग इम्प्रूव होती जाएगी, राइटिंग इम्प्रूव होती जाएगी, राइटिंग इम्प्रूव होती जाएगी, रीडिंग इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होते जाएंगे। और इसमें एक फैक्टर प्रैक्टिस का भी है। तो यहाँ पे मैं बार बार हर ओरिएंटेशन सेशन में स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपके सामने एक ट्रायंगल है, इसको मत भूलिएगा। और एक और चीज याद रखें, इस ट्रायंगल्स को डिस्कस करने से पहले लैंग्वेज is something which you acquire. It is not something which you learn. So what is the difference between acquisition and learning? Acquisition में आपकी body, आपके articulators, आपके gestures, ठीक है, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। लैंग्वेज के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो एक्विजिशन है? स्विमिंग एक्विजिशन है, स्विमिंग लर्निंग नहीं है, एक्विजिशन है। इसके लेक्चर्स ले लें, उसके बाद आप तैरने की कोशिश करें, नहीं तैर पाएंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, साथ साथ अपनी बॉडी को यूज टू करना पड़ेगा। ड्राइविंग जो सी है ये एक्विजिशन है। ड्राइविंग सीख लें, सीखने के बाद आपको बंदा पढ़ाए, पूरे लेक्चर्स दे, बताए गियर ऐसे करना है, ये ऐसे क्लच को यूज करना है, लेकिन जैसे ही आपको ड्राइव करने के लिए दिया जाएगा तो आप भूल जाएंगे और आपकी बॉडी में से एकदम वो चीजें निकल जाएंगी। इसी तरीके से जो लैंग्वेज है वो भी एक्विजिशन है। साइकिल चलाना एक्विजिशन है। तो बहुत ज्यादा चीजें वो एक्वायर करते हैं हम, वो ऐसी चीजें नहीं होती कि जो कि आप सीखते हैं। सीखने वाली चीजें दूसरी होती हैं। इसी वजह से इसमें एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट हो रही होती है, और लोग इसमें लूज कर रहे होते हैं हायर बैंड्स को। फाउंडेशन, you want 8 band, you want 8.5 band or 9 band or 7.5 band. So what does it mean? It means that you want to convince them that you are the perfect user, you are the expert user, you are the smartest one, you have a command on using different types of vocabulary, different types of grammar, right? You are flexible to do all these kind of things. Now this is something about foundation. अगर आपकी आर्टिकल की मिस्टेक्स निकल रही है, ए एंड आई ठीक नहीं है, आपके कॉमे ठीक नहीं है, तो वो कैसे कहें कि आप एक्सपर्ट यूजर हैं? कैसे आपको 7 बैंड दे दें? अगर आपकी वोकैबुलरी बड़ी पुअर है तो फिर आपको कैसे वो कहेंगे जी आप तो एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंट यूजर हैं? गुड तक तो मिल जाता 6.5 तक, गुड से आगे की जो कहानी है। और उसमें अगर आपकी बेस वीक है तो जितनी दफा मर्जी टेस्ट देते जाएं, जो मर्जी टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करते जाएं, आपकी बेस को बनाना पड़ेगा। आपकी उन ग्रे एरियाज को जो आपकी राइटिंग के अंदर है, रीडिंग के अंदर हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं पीछे से, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी गलतियां हैं बेसिक्स में जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है या नहीं आता? अच्छा जी, कंपाउंड सेंटेंसेस आते हैं या नहीं आते? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आते हैं या नहीं आते? पैराग्राफिंग का आपको आइडिया है कि नहीं है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फ्रेजेस का, क्लॉजेस का, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉजेस का आइडिया है कि नहीं है? अगर है तो लिखते हुए उस चीज को माइंड में रखते हैं या नहीं रखते? ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी वोकैबुलरी कितनी है बेसिकली। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर अब आप 7 बैंड नहीं ले सकते जब तक आप इन चीजों को इम्प्रूव नहीं कर लेते। दूसरी चीज, टिप्स एंड टेक्निक्स। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो अच्छा लिखने वाले हैं आइल्स में स्कोर नहीं कर पाते। देखा जाए तो उनकी ग्रामर भी ठीक होती है, देखा जाए तो उनकी वोकैबुलरी भी ठीक होती है,
लेकिन उनको ये नहीं पता कि टेस्टिंग बॉडी मांग क्या रही है, उसको दिखाना क्या है। वो कहते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिखें, एक आपका ऐसे और एक टास्क 1। और एक आम आदमी जो उनसे उसमें क्वेश्चंस लिख के आ जाता है, अच्छी राइटिंग होती है उसकी, लेकिन उसको आइडिया नहीं होता कि मैंने इन्हें कन्विंस कैसे करना है हाई स्कोर्स के लिए। तो वो कुछ टिप्स और टेक्निक्स हैं, अगर आप उनको यूज नहीं करते, वो स्मार्ट अप्रोच यूज नहीं करते, तो आपका रिजल्ट स्कोर ओरिएंटेड नहीं होगा, स्कोर्स नहीं उसमें अच्छे आएंगे। बेसिकली दरमियाने आ जाएंगे, 6 तक आ जाएंगे, 6.5 तक आ जाएंगे, 8 ईच नहीं आएंगे, 7.5 ईच नहीं आएंगे, इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। तीसरी चीज प्रैक्टिस। आपको कोई टिप्स एंड टेक्निक समझा दे, आपको कोई फाउंडेशन बता दे, ऐसे ही है जैसे आपको कोई स्विमिंग के तरीके समझा दे, उसके बाद आपको पानी में फेंके, एकदम आप डूबने लगेंगे। अच्छा, दुनिया के बेहतरीन कोचेज आ जाए आपके पास, स्विमिंग के इंस्ट्रक्टर्स जिसमें वर्ल्ड चैंपियंस आ जाए आपके पास, आपको एलसीडी बेहतरीन रिसोर्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपको डिफरेंट 3D मॉडल्स के जरिए समझाया जाए, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में बताया जाए, आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया जाए, आपको फिजिक्स के कानूनों के बारे में बताया जाए, और बताया जाए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आपको शॉर्टकट्स बताए जाएं कि जी अगर पानी ऐसे आने लगे तो आपने ऐसे कर लेना है। लेकिन जैसे ही आपको आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको पानी में उतारेंगे तो आप डूब जाएंगे। ये बात कंफर्म है, इसको तजर्बा करके कभी देख लीजिएगा, लेकिन कम गहरे पानी में, ठीक है, ये ना हो कि पक्के डूब जाए। तो तीसरी जो चीज है लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर, दैट इज योर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके आंसर्स की रेगुलर बेसिस पे मार्किंग नहीं होगी, आपके साथ क्रिटिक नहीं होगी, आपका वर्ड बाय वर्ड मार्क आपका काम नहीं चेक किया जाएगा, तो जो मर्जी कर लें आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। आप ये समझेंगे कि जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन स्कोर्स और आपके रिजल्ट्स बताएंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। फिर आप बात कभी कहेंगे जी टेस्टिंग बॉडी वाले पाकिस्तानियों को बाहर नहीं लेके जाना चाहते, टेस्टिंग बॉडी जो आइट्स वाले हैं वो हमारे खिलाफ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग काम वो नहीं कर रहे जो वो मांग रहे हैं, और हमें समटाइम्स पता भी नहीं लग रहा कि हमने करना क्या है। तो प्रैक्टिस जो सी है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, कि 1 घंटे में 60 मिनट में रीडिंग, 60 मिनट में राइटिंग, एक्सटेंसिव स्पीकिंग, फ्लुएंसी, रिकॉर्डिंग करें जी आप अपने टेस्ट की, और उसके बाद देखें कि आप कितने फ्लुएंट हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बताएंगी आपको कि आप मतलब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जी चलें जी, अब हम आते हैं कि अब डिटेल में इंशाल्लाह इस पे बात होगी, राइटिंग के ऊपर, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सब चीज़ों पे। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। हमारे पास ऑनलाइन सेशंस भी चल रहे हैं और इन हाउस भी चल रहे हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन सेशंस 2016 से, कोरोना से 4 साल पहले, कोविड-19 से 4 years ago, before 4 years before COVID-19, we've been teaching IELTS online। तो ऑनलाइन हमारे लिए कुछ नया नहीं है, बड़ा कंफर्टेबल वे में 90% स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन टीचिंग के आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि अच्छा मैं रिकमेंड करता हूँ 5 बैंड से नीचे वाले स्टूडेंट्स को, 5.5, 5, 4.5, मैं कहता हूँ कि अगर आप के इतने बैंड्स आ रहे हैं, 3.5, 4, 4.5, 5, बेस कमजोर है, टेंस नहीं आते, स्पेलिंग ठीक नहीं है, सेंटेंसेस ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं समझ आती, तो फिर आप लोग ऐसा करें, मेरे पास आ जाए लाहौर में, इन हाउस सेशन ले लें, वो ज़रा बेहतर हो जाएगा। छोटे बच्चों की तरह स्पून फीडिंग की तरह आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। तीसरा, जो अगर आपका जो है वो 5.5 और 6.5 के दरमियान में आप स्टैंड कर रहे हैं, तो फिर आप ट्रांसपोर्टेशन पे टाइम ना ज़ाया करें। ये हमारी श्योरिटी है 100% कि आप ऑनलाइन अपने घर बैठे जहाँ जहाँ पे भी हैं क्लास लेके स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। तो एक तो ये, अब टाइम टेबल क्या है, फीस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, हमारी एक क्लास होती है 6 से 6:30, ये ऑप्शनल क्लास है, वो कैबलरी की होती है। इसमें आपको वर्ड सिखाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाता है, वो कैबलरी लर्निंग की टेक्निक्स बताई जाती हैं।
लेकिन अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, आप बाद में इसको सुन लें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यू हैव टू टेक दिस क्लास। ठीक है ना, 6 से 6:30 बजे है, ये एक ऑप्शनल है, ले लें, हम आपको फ्री मतलब अवेलेबल होगी, मोस्ट वेलकम। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है लर्निंग में स्टूडेंट्स की, उनकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई है इसे क्लास की वजह से। इसमें 3-4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, और भी कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, और हमारा अपना रिसोर्स डेवलप हुआ हुआ है इसमें। ये CSS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वोकेबलरी की क्लासेस लाजमी लें। GRE इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं, IELTS 9 बैंड के लिए कर रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगा ये जी 001 से लेकर 500 तक वर्ड्स हैं। अगर आप किसी वर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी तस्वीर नज़र आती है। लेट्स सपोज ये मैंने इसको क्लिक कर लिया, तो आपको ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है जिसका इसके साथ ताल्लुक हो, इस वर्ड के साथ। फिर उसके मीनिंग्स बताए जाते हैं, उर्दू मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, और वो सारे रेफरेंसेस के साथ। कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड के हम पिक करते हैं, हर जगह से गूगल से नहीं मीनिंग उठाते। उसके बाद कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से आप इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं, इसके सिनम सीखते हैं, इसके एंटोनिम सीखते हैं, वर्ड फैमिली या रिलेटेड वर्ड सीखते हैं, किन कम्बिनेशंस के साथ आपने इनको यूज करना है, और डेली हम रिपीट करवाते हैं। तो ये एक, कुछ लोग सिर्फ वोकैबलरी की क्लासेस ले रहे हैं और वो कोई क्लास दूसरी नहीं ले रहे। दूसरी चीज, लिसनिंग के कुछ लेक्चर्स हैं, वो हर वेंसडे को कुछ तो लेक्चर्स मैं आपको दे दूंगा, साथ साथ वो आप सुनते जाएंगे। वेंसडे को हमारी लाइव सेशन होता है, वोकैबलरी की क्लास नहीं होगी, लिसनिंग की क्लास होगी, वो आप लेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ वंस इन अ वीक। उसके अलावा कुछ आपको ऑनलाइन रिसोर्स मिल जाएगा। स्पीकिंग की 7 to 8 मिस फरखंदा सेशन लेती हैं सऊदी अरब से, और रेगुलर होता है मंडे टू फ्राइडे, उसमें कोई ऑफ डे नहीं है, और बहुत एक्सपर्ट टीचर हैं वो। बैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 5-6 साल से मेरे पास हैं, उनके अपने भी 8777 आए हुए हैं, मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि खुद तो स्कोर नहीं किया या नहीं उनको पता, लेकिन उन्होंने, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शायद यहाँ पे भी उनका, ये है जी मिस फरखंदा, 8, 7.5, 7, 7.5, ये पुराना रिजल्ट है। डेट शायद यहाँ पे आ रही हो 2018 का, अब 2022 है। 2018 से पढ़ा रही हैं, शी इज एक्सपीरियंस टीचर, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के इन्होंने नंबर निकलवाए हैं। तो स्पीकिंग की क्लास होती है आपकी 7 to 8। अगर आप लेना चाहें, इफ़ यू थिंक दैट यू आर कंफर्टेबल विद स्पीकिंग, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सारा फोकस रीडिंग और राइटिंग के ऊपर करें। अच्छा, उसके बाद एक बच्चा कहता है कि, हम कहते हैं कि यार ये बंदा डेफ एंड डम है। डेफ एंड डम क्या, गूंगे बहरे बच्चे हैं। गूंगे बहरे बच्चे डॉक्टर के पास हैं, वो कहेंगे यार इसकी जबान ठीक है, इसके आर्टिकुलेटर, इसके एल्वियोलर, इसके पैलेटर, इसके लिप्स, इसकी जो एप्पल कॉर्ड, ये जो भी साउंड्स वगैरह प्रोड्यूस करता है बिल्कुल ठीक है, ये तो बोलता क्यों नहीं है? वो कहेंगे सुनता नहीं है। अगर ये सुनना शुरू कर दे तो बोलना भी शुरू कर दे, क्योंकि ये सुनता नहीं है तो बोल नहीं सकता। इसी तरह जो बंदा पढ़ता नहीं है वो लिख नहीं सकता। अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ अंग्रेज ले लें जो ना लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, वो अंग्रेजी बोल सकता है। इसका मतलब है बोलने के लिए सिर्फ लिसनिंग जरूरी है, लेकिन बगैर पढ़े राइटिंग नहीं हो सकती। रीडिंग राइटिंग इकट्ठी होगी। जो हमारी राइटिंग की क्लास लेगा उसको रीडिंग के साथ लेनी पड़ेगी। रीडिंग की क्लास का मतलब ये नहीं कि रीडिंग की एक पैसेज में डेली बेसिस पे खुद करवाऊंगा आपको, उसको बताऊंगा उसको अटेम्प्ट कैसे करना है और उसके थ्रू राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करना है। ये जो प्लीज डूडलिंग ना करें, ये मेरे ख्याल में किसी से हो गया गलती से। अच्छा, उसके बाद फिर राइटिंग सेशन है। राइटिंग के अंदर हमारा कोर्स आउटलाइन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप एकदम आए और हम कहें कि जी आज नया बच्चा आ गया, ये जी ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट हो गई है, तो अब आप पूरा महीना, अब एक सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे जिसमें एक कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन किया गया बहुत रिसर्च के बाद। पाकिस्तानियों की जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको देखते हुए, इसमें ग्रामर है, टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, ग्रामर के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, वोकैबुलरी है, उसको आप समझेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। कि आप आ जाएं जी लिख के दिखाएं, जी चलें जी लिख लिया, ये मसले हैं, अगले दिन फिर लिख के दिखाएं, फिर नहीं, आपको साथ पढ़ाया जाएगा, लेक्चर्स लिए जाएंगे, आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे,
आपकी पंक्चुएशन ठीक करवाई जाएगी, आपके आर्टिकल्स को समझाया जाएगा, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाएगा। ये सारी से सारे काम करेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस में ये नहीं कि आपका पैसेज पकड़ के टिक 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 लगा के चले जी। उसमें 1 घंटा सिर्फ हमने प्रैक्टिस में ये रखा हुआ है कि मैं आपके सामने क्वेश्चंस खोलूंगा, उनके उनको मैं रीड करूंगा, फिर आप अपना भी सुनेंगे, दूसरे लोग भी आपका सुनेंगे, फिर तो किसी दूसरे का पिक करूंगा, आपके सामने फिल्टर होके 8 बैंड के, 7 बैंड के, 7.5 के, 6.5 के स्टूडेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। और आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और वो कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो किन वजूहात पे अच्छे हैं बाकियों को पता लग जाएगा। और उनको क्यों उतने स्कोर नहीं आ रहे, आपको क्यों स्कोर दिया जा रहा है, या आपके स्कोर क्यों नहीं आ रहे, बाकी लोगों को क्यों दिया जा रहा है। जब कंपैरेटिव आप एक ही क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह को कंपेयर करेंगे बाकी लोगों से, तो आपको पता लग जाएगा। आखिरी चीज ये है कि क्वेश्चंस पहले से लिखे हुए मौजूद होंगे, ठीक है ना। जैसे ये लाइव सेशन में हम प्रैक्टिस सेशन में आए, हर स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। जैसे मैं ये ऐसे राइटिंग में आ गया, जनवरी के अंदर 3 जनवरी, ठीक है जी, आज फर्स्ट है, कल संडे है सेकंड, और ये 3 जनवरी को ये क्वेश्चन है। अभी आप नहीं करेंगे, पुराने स्टूडेंट्स लिखेंगे, लेकिन ये डेट वाइज आपने इसको अटेम्प्ट करते जाना है। आप आए ना आए, छुट्टी करें, कुछ भी है, क्वेश्चंस आएगा, लिखेंगे स्टूडेंट्स, में उनके चेक करूंगा और आगे चलते जाएंगे हम। और जो बंदा प्रैक्टिस करेगा लेक्चर्स देने के साथ, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि दे विल इम्प्रूव। तो दिस इज समथिंग अबाउट आवरसेल्फ। और हम लोग कैसे करते हैं जी, फीस भी सुन लें, अक्सर पूछते हैं जी फीस क्या है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, $200 और ये फीस हमारी 2016 से है, कोई नई नहीं किया। अब अबू धाबी से, सऊदी अरब से, मस्कत से $200 चार्ज करेंगे। वो जितनी भी बनती है डॉलर्स के अकॉर्डिंगली, हमारी भी जो पेमेंट्स हैं वो भी डॉलर्स में ही होती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक लिवरेज है कि दे विल पे 25,000, और पहले हम नहीं देते थे, अब ये भी हम दे देते हैं कि अगर आप चाहें तो इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ 15,000 और सेकेंड मंथ 10,000। लोगों के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि पावर ऑफ परचेज ख़त्म होती जा रही है। तो लेकिन ये है कि 45 वर्किंग डेज का है, नेक्स्ट मंथ आपको पे करना पड़ेगा। थर्ड मंथ में आप जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए यू विल पे 5,000। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जो पाकिस्तानी रेजिडेंशियल पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए ऐसा है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो $200 पे करेंगे। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं। और बाकी सारी चीज़ें मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहें बाद में, जब आप मुनासिब समझें तो वो भी कर लेंगे। और ये अच्छा जी, रिजल्ट्स हमारे किस तरह आते हैं। रिजल्ट्स जी हमारे 80% सक्सेस रेट है। कैसे? अक्सर स्टूडेंट्स हमारे से कहते हैं जी आपने रिजल्ट लगाए हुए हैं, फेक रिजल्ट हैं, आप पेपर बेचते हैं, आप डन बेस कराते हैं, आप हमें हमारे से पैसे ले लें। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे जेन्युइन रिजल्ट हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स को हम रिकमेंड करेंगे, आफ्टर 2 मंथ्स आपको कहेंगे जी, आपके सामने स्टूडेंट्स रिकमेंड भी हो रहे होंगे, आप ही के साथी जिन्होंने तैयारी आपके साथ शुरू की, उन्हें कहेंगे जी आप पेपर दें, आप पेपर दें, आप पेपर दें, ठीक है। उनकी मार्किंग करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि जी आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और बाकी स्टूडेंट्स जब तक वो उस लेवल को अचीव नहीं कर लेते, अब 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, अब आपकी मर्जी है जाके प्रैक्टिस करके आ जाएं, फिर हमें दिखा दें। हमारे साथ प्रैक्टिस कंटिन्यूस करना चाहते हैं तो करते रहें, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि आपके वीज़ा का टाइम ख़त्म हो रहा है। हमने आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको अलाउ करना है। आप मुझे आज लिख के दिखा दें, 20, 25, 30 दिन के बाद आप दूसरे महीने की फीस ना दें, जाए 15,000 रुपये में पेपर दे दें, मैं सच्चे दिल से आपको कहूँगा जी आप चले जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। स्टैटिस्टिकल डेटा एक्विजिशन में, लर्निंग में, वो मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि चाहे आपको 5.5 बैंड चाहिए, 6 चाहिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको 7 ईच, 8, 777 की तैयारी करवाई जाए, ताकि हमारे रिजल्ट्स भी ख़राब ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सिस्टम। आइल्स कैसे तैयारी हो रही है, कैसे सेशन चलेगा ये। अब कोई क्वेश्चन अगर आप में से पूछना चाहता है तो पूछ लें। जी, एनी वन ऑफ यू।
if you want to ask a question. एक्सक्यूज मी सर, जी यशवा बोलो। सर फुल लेंथ प्रैक्टिस के लिए कुछ होगा? मतलब अगर आप सजेस्ट करते हैं किसी को कि वो टेस्ट दे ले जाके, तो फुल लेंथ पेपर वो अपने ओन अटेम्प्ट करके आपको चेक करवाएगा और देयर विल बी एनी सेशन? नहीं, अब इस तरह ना रीडिंग में करवा रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि रीडिंग में आपके 60 मिनट में टाइम बाउंड जब अटेम्प्ट करती हैं तो क्या स्कोर्स आ रहे हैं। राइटिंग में डेली बेसिस पे आपके मार्क कर रहा हूँ, वो पता लग जाता है स्टूडेंट को। ठीक है सर। स्पीकिंग की जो टीचर है वो सर मॉक टेस्ट लेंगे और मॉक टेस्ट लेके बताएंगे कि मुझे बताएंगे कि सर इस बंदे के इतने स्कोर आ रहे हैं। जी, और सर इसके अलावा जो प्रीवियस आइल्स की बुक्स हैं, वो पीडीएफ तो अवेलेबल हैं, उनके साथ ऑडियोज भी होती हैं? उनकी जो ऑडियो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। सिंपल आप टेस्ट 7 बुक 7 टेस्ट 1 लिखें, उसकी ऑडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, बुक 8 टेस्ट 2 3 लिखें, उसकी ऑडियो आपके पास आ जाएगी। वो यूट्यूब पे सारी अवेलेबल है, उसको कहीं वो दूसरे सोर्स से लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ बुक्स मेरे पास मौजूद हैं, आप लेना चाहें मैं आपको वैसे ही गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, आप ले लीजिएगा। लेकिन बेहतर ये है कि हार्ड कॉपीज आपके पास अगर आप एक्सेस कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर से बहुत महंगी मिलती हैं। जी तो वो जो पाकिस्तानी है वो तो इजीली कर सकते हैं, वो तो ले लें, उसको कोई मसला ठीक है। नहीं। जी फहद थैंक यू सर। आप, फहद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? फायजा यूसुफ, महरोज, एहतशाम, उसामा, वनीजा, शोएब मलिक। जी सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जी जी बोलें शोएब। सर इस तरह से है कि ये आइट्स एक होता है पेपर बेस और एक होता है कंप्यूटर बेस। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और अगर हम करना चाहें तो बैंड रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, बैंड अगर हम अच्छे एक्वायर करना चाह रहे हैं तो दोनों में से कौन सा बेटर रहता है सर? ये दोनों ना मोड्स ऑफ असेसमेंट हैं। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप कंप्यूटर बेस दें, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप कंप्यूटर बेस दें, आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो आप कंप्यूटर बेस दें, अगर आपकी रीडिंग बहुत पुअर है तो आप पेपर बेस दें। ठीक है ना। अगर आप कोई कंप्यूटर में आप इतने ज्यादा साउंड नहीं है, एक उंगली से टाइपिंग करते हैं, तो आप फिर पेपर बेस दें। आपके पास टाइम ज्यादा है, कन्वेंशनल वे में आप यूज टू हैं, तो फिर आप पेपर बेस दें। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन सा बंदा किधर ज्यादा कंफर्टेबल है। कंप्यूटर में भी हमारे 9 बैंड्स आए हुए हैं, 8.5 दूसरे में भी आए हुए हैं। तो मेन जो चीज है ना इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपकी तैयारी है। ओके स्टूडेंट, सी यू इंशाल्लाह। मंडे से हम फॉर्मली इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, जो ये ग्रुप्स जो बने हुए हैं डिसॉल्व हो जाएंगे आपके, और वो गूगल क्लासरूम्स को ज्वाइन कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स और उसमें से आ जाएंगे। तो अगर कोई ग्रुप से निकाला जाए तो उसको माइंड ना करे कि सर ने हमें निकाल दिया, वो ग्रुप सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास के लिए बने थे और उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे।